Okay, once again, Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. And we are going to start with the first chapter, as this is our second lecture today. But we are going to start, and I think yesterday we had a talk about our syllabus and different aspect. So today we are going to start with the first chapter, and for that, let me refer with the syllabus. Okay, so this is my syllabus: mobile communication and computing, and the course code is CSC 702. Okay, in the complete syllabus copy, it comes as a second subject, so it has been given as a CSC 702. Okay, I think आपका first वाला है DSIP, so it has been given 701. Okay, and regarding course outcome, I have already told you that the course outcome, I will be constructing the course outcome and then I will share it to you on the WhatsApp group. Okay. So in the first module, we will be learning these topic. Okay, and out of this, we'll be starting the first unit, that is 1.1. We will start with the introduction to mobile computing. First of all, let me ask you people that what you know about mobile computing, what you have an idea about mobile computing, what you can understand about the mobile computing. Anyone from your side, okay? Even if you give the wrong answer, then I will appreciate. Not a big deal. But at least you must answer. That's the question. You have any idea about mobile computing? Sorry, slip of finger. Mobile computing. बोलो. अरे कोई बोलता ही नहीं भाई. बोलो जल्दी बोलो. नहीं है तो ठीक है, कोई इशू नहीं. Our first slide, okay. I'll be moving with the help of the slides also, and with the help of computing with less power. Okay, good. Also good. Let me see all the answers because I think many people have given the answers. Communication system with portable devices and computing with less power. Okay, ठीक है, दो answers है. Communication between human and computer. अरे बाबा वो अपनों को नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, 8 सेमेस्टर में. ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन नेक्स्ट इसमें आने वाला है वो, अगर रहा तो. हाँ, ऑपरेशन डन ऑन मोबाइल. गुड गुड गुड, वेरी गुड. चलो ठीक है. सो what is basically your mobile computing? You're basically nothing. Your mobile computing is nothing but the technology. Okay, why I will say this is a technology, because without this particular technology we cannot have, our mobile. We are having, we all are having our mobile phones, and we are able to communicate with others while on the move, not in this condition that we have to talk. If you want to talk to someone, okay, maybe on landline or maybe on your mobile. So अगर मुझे किसी से बात करना है, maybe on, yeah, maybe on the mobile phone or maybe on the landline. Okay, so I need to stay at one place, and then only I can connect with some wire or some cable, and then only I can talk or communicate. Is it like that? No, we are not having situation like that. Okay, now right now what is the situation? We can move anywhere in the world. Okay, we can move anywhere in the world and we can have a communication. At least we can surf the internet also. We can communicate in terms of surfing the internet, or we can have a chat, communication on WhatsApp also, or the Telegram, or a video conferencing apps. Okay, so we can have communication on these applications also. Okay, so we are not having any situation, we are not having any condition that we have to stay at one place and then only we can communicate. Okay, so it was the situation with the desktop computer.
इट वॉज द सिचुएशन विद दी डेस्कटॉप कंप्यूटर के। डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप मूव नहीं कर सकते, या आपको अगर मूव करना है तो अपना लैन केबल और पावर वगैरह सब कुछ लेके आपको उसको लेके घूमना पड़ेगा, उतना लंबा केबल आपको करना पड़ेगा। सो इमेजिन द सिचुएशन, यू आर मूविंग विथ योर डेस्कटॉप और विथ योर लैपटॉप, और लैन केबल लेके आप पूरे घर में, कभी ये बेडरूम में, कभी वो बेडरूम में, कभी लॉन में, कभी हॉल में आप घूम रहे हो, कभी गैलरी में घूम रहे हो। तो व्हाट कैन बी द सिचुएशन? ये आपका मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन को अगर आप जब तक कनेक्ट करेंगे नहीं केबल से, मतलब नॉट अ चार्जिंग केबल, कुछ एक तरह का केबल हो जो कि आपके, जैसे कि आपकी एक लैंडलाइन फोन होता है, सो लाइक दैट। So I'm just telling you, this is the technology in the mobile computing is a one technology from which all these things are possible. What are the thing different? What are the different things which are possible right now? We can communicate. We can call someone. We can have a communication with someone while on the move. Okay, this is very important term. While on the move. Okay, I am not going to stay at one place and I'm going to talk. Okay, not like that. I will be on the move. Okay, चलते चलते बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेन में हूँ बात कर रहा हूँ, बस में हूँ बात कर रहा हूँ, इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, मैसेजिंग कर रहा हूँ, चैट्स मैं इनेबल्ड चैट में कर रहा हूँ। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आई एम डूइंग। ये कब पॉसिबल हुआ? ये पहले पॉसिबल नहीं था। All these services were not possible in the earlier times. Okay, now with the help of your mobile computing technology, okay, now it is possible to communicate while on the move. Okay, so this is my concept and this is my understanding that while while learning and while understanding any chapter or any topic, any subject, first of all you need to understand the cause, the reason behind that particular, the existence of that particular topic. For example, you are understanding or you are learning this topic now, introduction to mobile computing. By Q, what is the reason behind the existence of this particular topic? Okay, आप कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहे हो, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स क्यों, what is the reason behind it? So just try to find out the reason and just try to find out the cause for learning that particular chapter, topic or subject. Okay, so if you will try to find the cause and if you will try to find the reason behind learning that particular chapter, topic or subject, then you can understand that particular topic very clearly and more efficiently. This is my understanding, my concept. Okay, सो नाउ इतना तो समझ में आया है कि मोबाइल कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वी कैन एटलीस्ट कम्युनिकेट व्हाइल ऑन द मूव। ठीक है, ये आगे वर्ड लगाना जरूरी, ऑन द मूव। बात पहले भी हो रही थी, कम्युनिकेशन आप पहले भी कर पा रहे थे, ठीक है, लेकिन एक जगह पे बैठे बैठे कर पा रहे थे। फिर आपको चलने का नहीं, आप लोग सोचा कि यार मैं ट्रेन में बैठे बैठे भी मुझे चैट करने का है, मुझे बात करना है, क्या करूँ? वी हैव टेक्नोलॉजी। मुझे ट्रेन में चलते चलते व्हाट्सएप यूज करने का है, आ गया। मुझे ट्रेन में चलते चलते भी मुझे ना पबजी खेलना है, ठीक है, यू हैव दिस मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। So all those people can, thanks to this mobile computing technology, from which it is possible for all of us to have a communication or to share or our information or to do the communication while on the move. Okay, so that is the main reason and the main we can say cause behind learning this particular topic. Okay, इसको हम लोग कहाँ पर है, हम लोग अभी, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। So introduction, it is a technology basically. Very first, it allows transaction. The transaction can be shortly in terms of we can write in terms of TX. Okay, so it allows transaction of data, voice and videos. We have all the kinds of data, we call it as a multimedia. Okay, so it allows the multimedia or all the types of data, like we have text, we have voice, we have videos, we have all the types of data from one device to another device. Now we can easily share our videos, our images, our text, our audios. Any kind of file can be sent via WhatsApp to another person. How it is possible? By some mobile computing. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहे हैं, आपकी आवाज भी जा रही है, आपका वीडियो भी जा रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? मोबाइल कंप्यूटिंग। ठीक है, इसमें इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारा आपका सिलेबस है। ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, it allows us to for it allows the transaction of all these kind of data from one device to another device. Okay,
अब वो जो सामने वाला डिवाइस है, मे बी अ मोबाइल और अ वायरलेस डिवाइस, ओके, तो मैं तो उसको कर पा रहा हूँ और वो भी मुझे सेंड बैक कर पाएगा, ठीक है। सो वो हो सकता है कि वो ऑन द मूव है, वो भी ट्रेन में बस में चल रहा है, और ही इज नॉट कनेक्टेड टू एनी वायर्ड कनेक्शन, ठीक है, वायरलेसली कनेक्टेड है। मीन्स डेटा, अच्छा, और एक चीज है बीच में, मोबाइल कंप्यूटिंग इज यूजिंग कंप्यूटर विद वाइल ऑन द मूव, ठीक है। तो वाइल ऑन द मूव यू विल यूज दिस टर्म, एक दो चार बार हम लोग यूज करेंगे दी ये वाला टर्म, एंड देन ऑटोमेटिकली ये टर्म हमको हर जगह पे हमको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। सो मोबाइल कंप्यूटिंग इज यूजिंग कंप्यूटर वाइल ऑन द मूव। इन्हें सोच लो, आपका जो डेस्कटॉप है वो, या आपका लैपटॉप है वो, आप लेके घूम रहे हो यहाँ वहाँ, और आप कनेक्टेड भी हो, ठीक है। सो while on the move you are using your computer, so we can more elaborate in this way also. Means data can be accessed from anywhere and anytime, okay. So obviously if my data is available and I'm always connected, not like that कि भाई चलो मैं अभी अपने घर पर हूँ, so that कि भाई आप मेरे पास जो डेटा है, मेरे पास जो डेटा है, you can access that data from 4 to 5 only, because at that time I am connected to my computer and I'm connected to the internet also. So you can access that particular data from 4 to 5 only. Okay. So any time तो नहीं हुआ ये, ठीक है। तो मुझे खाली 4 to 5 में डेटा एक्सेस करना है, तो ये जो हमारे रेस्ट्रिक्शंस है इनको हम लोग ने रिमूव किया है, ठीक है। नाउ एनी वन कैन एक्सेस एनी, अच्छा, एनी वन कैन एक्सेस मीन्स यहाँ पर वो वैलिडेशन और ऑथेंटिकेशन वो सब मॉड्यूल्स आ जाएंगे। सो एनी वन कैन एक्सेस द डेटा from anywhere and at any time, okay. So anytime that particular data can be accessed, okay. So while on the move your data can be accessed, and all these things are possible because of this mobile computing technology, okay. तो इतना सब पढ़ने के बाद में, ये दो चार लाइन और इतना डिस्कशन के बाद में, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, मोबाइल कंप्यूटिंग इज नथिंग बट अ टेक्नोलॉजी, ओके, and it allows that the transaction of all the kinds of data from one device to another device, okay. No point. Third point, you can imagine your mobile computing technology in such a way that mobile computing is nothing but using a computer while on the move, ठीक है। अपने कंप्यूटर को यूज कर रहे हो, चलते चलते यूज कर रहे हो, ठीक है। सो जो चीजें आपके वायर्ड में पॉसिबल थी, अब उसी चीज को वायरलेसली पॉसिबल करना है। सो दैट इज द टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू मेक all these things possible, so that you can access the data, anyone can access the data from anywhere at any moment of time, ठीक है। these are the components, I hope ये आप लोग को समझा होगा, ठीक है। कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऑल अबाउट मोबाइल कंप्यूटिंग। ओके, सो द कंपोनेंट्स, मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल हार्डवेयर, जैसे कि हम लोग ने बात की थी। इफ आई विल आस्क यू पीपल दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन द कंप्यूटर नेटवर्क, ओके, then you can easily say, sir, we have hardware components, we have software components. So in hardware components, we have, LAN cable, and we have RJ45 connectors, we have a number of computers, okay, and we have server or something like that. We have any networking device also, so that we can connect number of machines with each other. Okay, so these are the hardware requirement, or we can say hardware components of a network. Okay, and what about the software component? तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में क्या जाएगा? इन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट यू कैन से कि हाँ सर, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और जो आपका सर्वर है उसमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, या भी जो कुछ ड्राइवर्स वगैरह है, दैट ड्राइवर्स मस्ट बी इंक्लूडेड. So these are the requirements, or we can say components in the computer network. So in the same way, we are having some components which are available, which is required in order to set up the mobile computing environment. Okay, first of all we need the mobile communication. Okay, मतलब पहले तो हम लोग को कनेक्टिविटी चाहिए, ओके, एंड आफ्टर दैट वी नीड सम सॉफ्टवेयर, यानी कि मोबाइल सॉफ्टवेयर, यानी जो भी डिवाइस, वॉट एवर डिवाइस वी आर गोइंग टू यूज in that particular device, you need that particular software also. For example, I'm using some kind of mobile, ठीक है, this is my mobile, okay. So in my mobile there must be some kind of software, ठीक है। तो इसका operating system is a one software, okay, and I'm using the Zoom meeting right now, ठीक है। So I'm just connected with any other person with audio वीडियो, ठीक है। Zoom है तो मैं ऑडियो वीडियो दोनों पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो Zoom मीटिंग, आपका जो Zoom एप्लीकेशन है, इट इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर, ओके। उसके बाद में आपका मोबाइल हार्डवेयर, ठीक है। सो मोबाइल हार्डवेयर मीन्स
वॉट एवर डिवाइस यू आर यूजिंग, वॉट एवर हार्डवेयर जो भी उसमें यूज हुआ है उसका उसको उसको मेंशन करना है। तो हार्डवेयर में क्या यूज हुआ है, इसका कैमरा है, इसका प्रोसेसर है, जो भी यूज हुआ है। तो हार्डवेयर डिवाइस में आपका डिवाइस खुद आ गया, ठीक है। और आप जिस नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो वो हार्डवेयर आ गया, ठीक है। सो ऑल दीज आर नथिंग बट द डिफरेंट कंपोनेंट्स which are required in order to set up your mobile computing environment. ओके, यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग को, हाँ या नहीं बताओ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खाली बस बोलते जा रहा हूँ। समझ रहा है क्लियर है? ओके, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है सो यू कैन आस्क मी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। और वैसे भी इसके अंदर मतलब अभी अभी तो स्टार्टिंग है, तो कोई बहुत ज्यादा ऐसे बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। लेट मी रिपीट इन 5 or 10 seconds. We have seen what is mobile computing. Basically it's a technology which allows us to for the transaction of any kind of data. You can transfer, you can transfer, you can transfer audio, video, text, and any kind of data can be sent from one device to another device. That device जो होता है वो मे बी मोबाइल और मे बी वायरलेस, ठीक है। मतलब बेसिकली मोबाइल बोलो तो वायरलेस ही हो जाएगा, ठीक है। सो जो मोबाइल डिवाइसेस है, द डिवाइसेस विच आर ऑन द मूव, ऐसे डिवाइसेस को हम लोग बोलेंगे मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। होता है ना, बोलते हैं पुलिस की मोबाइल आ रही है, अक्सर लोकल एरियाज में लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि मोबाइल आ रही है। तो मोबाइल मतलब बेसिकली जो पुलिस की जो गाड़ी होती है, जो वैन होती है, उसको मोबाइल कहते हैं। या फिर उनकी जो मतलब जो जिस पर टॉ 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 जो उसके ऊपर लाल बत्ती होती है ना, तो वो भी आपका है ना मोबाइल, उसको हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज दैट इज ऑन द मूव, दैट इज वो चल रही है, ठीक है। सो it allows the transaction of all kinds of data between the two devices which are on the move. Okay, it's mobile computing is nothing but using a computer while on the move. Okay, and we can access the data at any moment of time and from anywhere. These are the components: mobile communication between the devices. Second, the software required for setup, hardware required for the setup. So that's all. Coming to the functions of मोबाइल कंप्यूटिंग, फंक्शंस बेसिकली है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी मैंने इसको ऐड कर दिया हूँ सो दैट बस गो थ्रू करके हम लोग चलेंगे। उसके बाद में वी हैव नेटवर्क्स एंड, ये भी है नहीं लेकिन मैंने इसको सिंपली जस्ट ऐड कर लिया हूँ। वी हैव नेक्स्ट टॉपिक एज अ टेली कम्युनिकेशन जनरेशन। ओके, okay, coming to the functions of mobile computing basically. Now try to recognize and try to identify the functions of mobile computing. Try to figure out the actual थोड़ा सा उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटिंग? मोबाइल कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें दो मोबाइल डिवाइसेस, जो ऐसे ऐसे डिवाइसेस जो कि घूम रहे हैं, ठीक है, जगह पे घूम रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिक भी थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज वन डिवाइस, दिस इज सेकेंड डिवाइस। ओके, सो ये हम लोग एक एरिया में है, ठीक है, दिस इज वन एरिया, दिस इज डिवाइस वन, दिस इज डिवाइस टू। दे आर मूविंग, यहाँ से कभी वहां कभी वहां कभी यहाँ, इन लोग घूम रहे हैं। So while on the move, they can share some file, they can transfer some file from device one to device two. ठीक है, so this is the situation, this is the technology of mobile computing. Okay, तो इसको हम लोगों ने अपने दिमाग में विजुअलाइज किया। ओके, नाउ व्हाट इज यूजर मोबिलिटी? ओके, यूजर मोबिलिटी बेसिकली आपका यूजर कहीं भी मूव हो सकता है। मतलब आपका आपका ये डिवाइस है, यू नो दिस डिवाइस टू वाज प्रेजेंट एट दिस लोकेशन, नाउ एट एनी एट टाइम t1 your device 2 was present at this location. Now at time t2 your device 2 is present at this location. तो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ गया, हमारी ट्रेन थोड़ी सी आगे चली गई, ठीक है। तो यूजर मोबिलिटी ये एक है। देन नेटवर्क मोबिलिटी, आप चलते चलते आपका आपका जो डिवाइस टू है, आपका जो टावर था, जो जिसको हम लोग बोलते हैं बीटीएस, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, ठीक है। आगे चल के वो टर्म भी आएगा आप लोग को, मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें आ गई है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। सो दिस इज योर बीटीएस, ओके, बेस ट्रांसीवर स्टेशन। सो योर
योर बेस ट्रांसीवर स्टेशन की जो रेंज थी वो यहाँ तक थी खाली बस, ठीक है। तो आपका जो D2 है वो रेंज के बाहर चला गया, तो अब ये कौन से BTS से कनेक्ट होगा, जो दूसरा रीजन है यहाँ पर, या फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा रीजन है, और तो यहाँ का जो BTS है उससे कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस कनेक्ट, मतलब क्या हुआ, नेटवर्क मोबिलिटी हो गई, नेटवर्क चेंज किया, कोई प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ। तो यूजर ने अपनी मतलब यूजर मूव किया, चलेगा, कि नेटवर्क भी मूव हुआ, मतलब नेटवर्क चेंज हुआ तो भी चलेगा। बियरर मोबिलिटी, सर्विसेज में चेंज करेगा तो भी चलेगा। बेसिकली आपका डिवाइस चेंज किए, फॉर एग्जांपल D2 वॉट एवर सर्विसेज ही हैज सब्सक्राइब, ठीक है, उसने फॉर एग्जांपल 1 मंथ के लिए डेटा सर्विस एक्सेस किया था, फॉर एग्जांपल 1 मंथ के लिए डेटा सर्विसेज लिया था, उसको कुछ उसने 149 का रिचार्ज किया था, ठीक है। अब अगर वो डिवाइस चेंज कर ले तो क्या उसका सब्सक्रिप्शन चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, वो उसका सब्सक्रिप्शन तो एज इट इज रहेगा। सो इवन वी कैन चेंज द डिवाइस ऑल्सो, ठीक है, तो डिवाइस कैन बी चेंज। And session mobility, whatever session is going on, whatever communication is going on, that can also be matlab that can also be change, or that can also be uh, keep keep on moving, ठीक है, मतलब उसको हम लोग ऑन द मूव कर सकते हैं। उसके बाद में एजेंट मोबिलिटी, यहाँ पर एक एजेंट का कॉन्सेप्ट, एजेंट आप लोग को बहुत आगे चल के आएगा। हर एरिया में एक एजेंट होता है, ठीक है, हर एरिया में एक एजेंट होता है जो अपने आप को डिस्कवर करता है, और जो डिवाइसेस उसके रेंज में आते हैं उनको उनको मतलब कि कैच करेगा, उनको पकड़ेगा और उनको सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ था तो ये वाले एजेंट से कनेक्टेड था, अब इस वाले रीजन में आ गया तो ये वाला एजेंट से अब कनेक्टेड हो गया। तो एजेंट मोबिलिटी, होस्ट मोबिलिटी, मतलब ऐसे बहुत, all the types of mobility, all the types of flexibility is available in the mobile computing, ठीक है। तो जितनी भी मतलब कि जितनी भी टाइप ऑफ मोबिलिटी है, that all the types of mobility can be achieved in the mobile computing environment, okay, and from that particular environment you can access those functionalities, okay। तो basically functions के अंदर टॉपिक दिया है, but in this you are going to access all the flexibilities, whatever flexibilities are there in the region, so all those flexibilities you are going to achieve, okay, in the mobile computing environment, okay। ज्यादा इसको समझने की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन आता भी नहीं है, बट मैंने जस्ट टॉपिक डाल के रखा हूँ। सो मतलब कहने का पर्पज ये है कि इफ यू आर अडॉप्टिंग एंड इफ यू आर यूजिंग मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, देन यू कैन अचीव ऑल दीज फ्लेक्सिबिलिटीज व्हाट एवर आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, ठीक है। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिल जाएगी। उसके बाद में आते हैं नेटवर्क्स इन द मोबाइल कंप्यूटिंग। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लाइक वी हैव वायरलाइन नेटवर्क, वी हैव वायरलेस नेटवर्क, वी हैव एडहॉक नेटवर्क, वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। एडहॉक नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के बारे में आपने शायद सुना होगा। एनीवन हर्ड अबाउट द एडहॉक नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क? किसी ने सुना है एडहॉक नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क? एडॉक नेटवर्क बेसिकली एक टेम्पररी नेटवर्क होता है जिसको हम लोग टेम्पररीली फॉर्म करते हैं, ठीक है। 2 or 3 or more devices comes together, they connect with each other, they share their files, they do their transaction and they leave, okay। तो टेम्पररी कनेक्शन और टेम्पररी नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडॉक नेटवर्क। एंड द नेटवर्क विच इज फिक्स, आई थिंक मैंने कल ही बताया हूँ, and the network which is fixed is called as infrastructure network, okay। We have wireline network, ठीक है, that is a traditional landline वाला network, okay, which is being controlled by the PSTN। याद होगा आपको PSTN मतलब? Anyone can tell me the full form of PSTN and the function of PSTN? Anyone from your side? क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़े थे कहीं ना कहीं, तो हम लोग ने पढ़े थे, CM में पढ़े थे PSTN। हिंट भी आपको आ गई है सामने, ट्रेडिशनल लैंडलाइन का। एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, PSTN, very good। So this is the PSTN actually, okay, public switch telephone network, okay, this is the right answer। PSTN is nothing but the public switching telephone network, and basically this is the network जो आपके सारे लैंडलाइंस को कनेक्ट करके उनको मैनेज करेगा, उनको कंट्रोल करेगा, उसको बोलते हैं PSTN, ओके।
फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा नेटवर्क जिसके अंदर सारे लैंडलाइन फोन्स है, लैंडलाइन फोन, सारे लैंडलाइन फोन्स, ओके। सो वी हैव अ पीएसटीएन ओवर हियर, PSTN, that is public switching telephone network, which handle all the landline phone, and this PSTN is connected for, या आपके मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मोबाइल से किसी लैंडलाइन को फोन लगाएंगे, अगर किसी मोबाइल से किसी लैंडलाइन को अगर आप फोन लगाते हैं, तो दैट इज द पीएसटीएन हु इज गोइंग टू मेंटेन योर कॉल, ठीक है। बिकॉज अंदर एंट्री के लिए पीएसटीएन से होकर जाना है, ठीक है। तो पीएसटीएन वहां पर यूज होता है, थोड़ा हम लोग और डिटेल में भी पढ़ेंगे वाइल गोइंग थ्रू द टॉपिक ऑफ जीएसएम, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद आएंगे वो टॉपिक, तो हम लोग वो करेंगे। तो पीएसटीएन, so we have different types of network, that is wireline network and wireless network, which इसके अंदर हमारे पास में CDMA, GSM। देखो, आपने पहले तो फोन यूज किया होगा, आपको 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 याद है जब रिलायंस ने फोन अपने लॉन्च किया था, तो उस टाइम पे 500 रुपए में मोबाइल मिल रहा था, याद है किसी को? किसी को याद है? यस, आप जब बहुत छोटे होंगे शायद, आपको शायद फिर ये भी याद होगा उस टाइम पे, बटन वाला, यस यस यस, क्वेटी कीपैड वाला था, छोटा सा फोन था, और ब्लू कलर की उसकी स्क्रीन थी, ब्लू कलर के उसका बैकलिट जो मतलब लाइट रहती है वो भी उसकी ब्लू कलर की थी। तो वो फोन की एक इंटरेस्टिंग चीज थी ना, वो आपका सीडीएमए वाला फोन था बेसिकली। अब तक जो है ना, दो तीन सर्विस प्रोवाइडर्स आपके, दे वर रनिंग ऑन सीडीएमए। लाइक फर्स्ट वाला आपका रिलायंस का था, जो कि सीडीएमए बेस पर, सीडीएमए टेक्नोलॉजी पर चल रहा था। आपका टाटा वाला था, ये भी टाटा इंडिकॉम जो था, टाटा पहले वाला टाटा इंडिकॉम, ठीक है। तो जो टाटा इंडिकॉम था, ये भी आपका सीडीएमए नेटवर्क टेक्नोलॉजी पे चल रहा था, ठीक है, जिनकी फ्रिक्वेंसी रेंज अलग थी, ओके। उसके बाद में फिर हमारे ये सब जो महाशय थे, एयरटेल भाई साहब, एयरटेल आपका, फिर वोडाफोन, देन ऑरेंज, एंड देन हर्च, ये सब थे आपका, टाटा डोकोमो। तो ये सब जो आपके नेटवर्क थे, ये सब आपके प्राइवेट नेटवर्क थे, ये सब आपके कौन से थे? जीएसएम नेटवर्क थे, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन वाले, तो जीएसएम वाले थे, ठीक है। और ये आपके सीडीएमए पार्ट वाले थे। सो मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि वायरलेस नेटवर्क के अंदर आपके पास में सीडीएमए था, जीएसएमए था, जीपीआरएस नेटवर्क भी था। जीपीआरएस नेटवर्क बेसिकली हमारे टाइम पे जब मैंने कल ही बताया कि व्हेन वी यूज्ड टू से दैट प्लीज आपका इंटरनेट ऑन करो, तो हम लोग बोलते हैं भाई आपका जीपीआरएस ऑन करो। सो उस टाइम पे जीपीआरएस भी यूज होता था, मतलब इंटरनेट सर्विस भी थी। सेकंड जनरेशन से आपका जीपीआरएस स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। मैं अभी ये सब अभी अगर बता दूंगा तो ये टॉपिक रह जाएगा, और आगे के टॉपिक अभी कवर हो जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग रुकते हैं यहाँ पर। हाँ, तो एक चीज मैं जो बता रहा था आप लोग को, रिलायंस मोबाइल की 500 रुपीज में फोन तो था, लेकिन बाद में जो सब लोग को जो बिल जो आया था, वो अराउंड 50,000 का, किसी को 60,000 का बिल ऐसा आया था। लोगों ने बहुत यूज किए किए और बाद में फिर फोन उठा के फेंक दिए। दे वर नॉट हैविंग आइडिया कि भाई उनका उनके 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 पास में डॉक्यूमेंट्स तो है, वो आपके घर पे आ सकते हैं। Sorry. So these were the different types of network which were used in the mobile computing. Okay, PSTN, CDMA, GSM, GPRS, सब के सब आपके मोबाइल कंप्यूटिंग में यूज हुए हैं, ठीक है। इवन आपका जो एडॉक नेटवर्क भी यूज हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज हुआ है। सो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क which were used in the mobile computing environment. Okay, और मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट किस लिए? इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स ऑन द मूव, इन ऑर्डर टू मेक द डिवाइसेस यूज द सर्विसेज ऑन द मूव, ठीक है। सारे डिवाइसेस आपके अलग अलग जगह पर है और ऑन द मूव है, लेकिन सब सर्विसेज यूज कर पा रहे हैं, ओके। सो विल बी एबल टू यूज ऑल द काइंड ऑफ सर्विसेज while on the move. That is the technology of mobile computing. Okay, so coming to the next topic, that is let me discard it. Okay. Let me come to the next topic, that is telecommunication generation. Okay, this is the second topic according to our syllabus. As you can see, introduction to mobile computing, this is, it was the first topic we covered just now.
We have next topic as telecommunication generation, and then we have cellular system. So we'll be covering telecommunication generation today, and in next lecture we'll be covering cellular system and spectrum, antennas, वगैरह and all that. ठीक है? So let us start with the telecommunication generation. अच्छा, बिफोर दैट, अच्छा ये होने के बाद मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा मैं, ठीक है? दैट टास्क वुड बी लाइक, आपको याद होगा कि बीच में कब हुआ था वो मुझे याद नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, 2011 में 2007 में हुआ था कुछ, हाँ, जिसको हम लोग 2G घोटाला बोलते थे, 2G स्कैम। ओके, इट वाज डन बाय राजा। ठीक है, तो मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, यू हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर डिटेल। मैं आपको टास्क दूंगा तो मुझे याद दिलाना वो टास्क देने का आपको। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टेलीकम्युनिकेशन जनरेशन से। ओके, सो बेसिकली फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली ऑल दी जनरेशन वर डिवाइडेड इनटू दीस 5 जनरेशन। ओके, मतलब आपका जो पूरा टेलीकम्युनिकेशन का जो एरा है, इट वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जनरेशन where different kind of technology were introduced. Okay, और हर जनरेशन के अंदर, इन ईच एंड एवरी जनरेशन, different technology with different features and services were provided in that particular generation. Okay, so ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार पूछता है, so just remember, theory क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, so just remember these information. Okay, so let us start. अच्छा, इसमें कौन कौन सी है? 1G 2G, अनिल अनिल कपूर के 1G 2G, then we have one more that is 2.5G, then 3G 4G, and the latest one which is 5G, which has already which is being implemented in almost all the areas. Okay, and we have lot of mobile devices also which are 5G enabled, or which has a capability to run on the 5G, 5G के सिग्नल्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ऐसा उनका क्लेम है। सो स्टार्टिंग विद द 1G, ठीक है, सिंपल टॉपिक है, जैसे एक बार रीड करेंगे आप लोग तो भी आराम से आप लोग को समझ में आ जाएंगे, तो इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम गो थ्रू करना चाहिए, सो दैट वी एटलीस्ट विल कम टू नो अबाउट दी what happens actually at that time. Okay, and what were the technology which were used at those time. Okay, तो क्या टेक्नोलॉजी यूज होती थी उस टाइम पे, और क्या मतलब अभी क्या यूज हो रही है, सो यू कैन इजीली कंपेयर एंड यू विल रियलाइज कि उस टाइम पे, or without all these things, they were communicating with each other in this manner. So in 1G, analog signals were used for communication. So now all the time we are having the डिजिटल सिग्नल। ठीक है, जो भी सिग्नल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी हम लोग अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन दी डिजिटल कम्युनिकेशन, वी कॉल इट एज अ डिजिटल कम्युनिकेशन, बट अर्लियर इट वाज द एनालॉग सिग्नल। ओके, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम यूज हुआ करता था। It was started in 1970, but it was deployed in 1984 by US. Starting वहीं से हुई है, स्पेशली डिजाइन फॉर वॉइस कम्युनिकेशन, खाली वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, ना ही डेटा, ना वीडियो, ना कुछ नहीं, मोबाइल टेलीफोनी, वॉइस। ओके, speed was up to 2.4 kbps. Now you can imagine what was the speed. According to the speed, what was the quality of the communication, quality of the voice. Okay, the voice quality was slightly poor. Okay, because we have to hear very concentrately, हम लोग को उसको सुनना पड़ता था properly, तब जाकर आपको समझ में आती थी। It was the era of first generation, that is telecommunication generation का first era. Okay, large phone with limited battery life. People were used to have इतने बड़े बड़े उनके पास में बॉक्सेस हुआ करते थे उनके, और उसको उन लोग फोन कहते थे। ठीक है, सो द फोन साइज वाज क्वाइट लार्ज एंड इट वाज हैविंग वेरी लिमिटेड। अच्छा, इतने बड़े बॉक्स को चलाने के लिए बैटरी भी लगती है, तो बैटरी वाज नॉट सो पावरफुल, सो दे वर हैविंग लिमिटेड बैटरी लाइफ आल्सो। ठीक है, तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेज थे। नो सिक्योरिटी इफ समवन इज eavesdropping, if someone is eavesdropping your call, and if somebody is catching the signals, then he or she can easily understand what they are communicating. Okay, so security भी नहीं थी। So this is the complete scenario of first generation. Okay, uses two links, one for communication, that is M1 and M2. Okay, one for the from मोबाइल स्टेशन, मतलब आपका फर्स्ट डिवाइस से लेकर तो बेस स्टेशन तक, और बेस स्टेशन से लेकर आपके सेकंड वाली डिवाइस तक। ठीक है, तो दो लिंक्स यूज हुआ करती थी कम्युनिकेशन के लिए। मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में बता दूं तो शायद आप लोग अच्छे से समझ जाए। दिस इज, जो मेरे पास में है ना,
इरेजर, इरेज, बॉल पेन, ठीक है। सो दिस इज द मोबाइल फोन, ठीक है। ये आपका मोबाइल फोन वन, ये आपका मोबाइल फोन टू, ओके। वी आर हैविंग टू मोबाइल फोन एंड वी हैव अ बेस स्टेशन ओवर हियर, ठीक है। तो ये हमारा बेस स्टेशन, तो विदाउट बेस स्टेशन इट वाज नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द मोबाइल डिवाइसेस, ओके। सो फर्स्ट वी use two links. First link used to communicate with mobile one to base station, and second link were used to communicate from base station to the mobile, okay। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता था। डिफरेंट टेक्नोलॉजी, एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम एएमपीएस एक टेक्नोलॉजी थी, उस टाइम पे यूज हुआ करती थी। टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम टीएसीएस, ये भी एक टेक्नोलॉजी थी जो 1G के अंदर यूज हुआ करती थी, ओके। सो टॉक्स अपार्ट, तो ये सारे इसके पॉइंट्स है विच कम्स अंडर दी 1G, ओके। सो नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द सिनेरियो ऑफ फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट टेलीकम्युनिकेशन जनरेशन। इट इज अराउंड यानी हम हमारे यानी पैदा होने से भी पहले की बात है, फर्स्ट जनरेशन। सो वो 1970 1984 यूएस में क्वालिटी 2.4, सॉरी स्पीड अप टू 2.4 kbps, वॉइस वर पुअर वॉइस क्वालिटी, लार्ज फोन विद लिमिटेड बैटरी लाइफ, नो सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन लिंक दो यूज होती थी, ठीक है। चलते हैं आगे। आया जमाना 2G का, ठीक है। सेकंड जनरेशन फोन आए। सेकंड जनरेशन फोन में आपका डिजिटल सिग्नल यूज हुआ, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब तक आपका फर्स्ट जी और आपका 1G में एनालॉग कम्युनिकेशन, एनालॉग यू नो communication technology were used in the 1G, the first generation. In the second generation, digital signals were used, okay, for the first time for communication. Their start in 1980 and deployment in 1990। मतलब टेक्नोलॉजी देखो थोड़ा आप इमेजिन करोगे, ज्यादा पुरानी नहीं है, ज्यादा ओल्ड नहीं है। इन फिनलैंड, ओके। स्पीड पहले में थी 2.4 kbps, now the speed becomes 64 kbps in second generation because of this digital quality, there's the quality of the signal। text and mms were also possible other than the voice, okay। तो भाई दो चीज और आ गई, छोटे छोटे mms and text were also possible। We can transfer and they used to transfer and they it was possible to transfer the text and mms with the help of this 2G technology। देखो हम लोग जब 11th में तो किसी के पास में फोन आया था, ऐसा कुछ इतना बड़ा फोन था, उसमें कैमरा भी था और कैमरे में फोटो समझ में भी नहीं आता था। बट उस टाइम पे भी वो फोन देखने के बाद में अरे वाह, कितना भारी क्वालिटी है, कितना कितनी अच्छी क्वालिटी है। नो वन इमेजिन दैट के आफ्टर 5 or 10 years we are going to have 64 megapixel, 108 and 105 megapixel picture quality, और इतनी 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 टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो नो वन इमेजिन दैट। सो उस टाइम की बात है ये, जब टेक्स्ट और एमएमएस वर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टिकुलर। सो बेटर वॉइस क्वालिटी, सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स आल्सो। इसमें जो जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो थी जीएसएम यूज किए थे, दैट इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ओके। coming to the 2.5G, two second generation, immediately after second generation एक और टेक्नोलॉजी इसमें ऐड की गई which were called as the GPRS, okay। so with the help of this GPRS we were able to use the internet very efficiently, okay। so in 2G internet service were added, that is the GPRS service were added। so दोनों को मिला के आपका बन गया 2.5G। आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है, आपने शायद देखा होगा कि इन सम ऑफ द मोबाइल यू हैव सीन कभी कभी ऐसा ऊपर 2.5G लिख के आता है। इमीडिएटली जब अगर कभी आप कोई बहुत ही ऐसे एरिया में जहाँ पर नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है, सो यू कैन सी ई नेटवर्क, ठीक है, ई लिख के आता है आपके नेटवर्क सिंबल में, ई लिख के आता है, दैट इज एज नेटवर्क, ओके। कहीं पर अगर मतलब पहले पहले स्टार्टिंग में जब फोन यूज करते थे इन 2010 when I got my first mobile, in that particular mobile I was it was showing like एच नेटवर्क, कभी एच कभी ई ऐसा दिखाता था, ठीक है। और कहीं कहीं पर एच के अलावा भी जो है ना तो एक और सिंबल आता था जो आपका 2.5G का भी हुआ करता था, मतलब ये फोन में नहीं, इसके पहले वाले फोन में। तो 2.5G का भी जो आपके नोकिया फोन वगैरह थे उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने मिलती थी, मतलब ये आपका जनरेशन देखने मिलता था। With the help of this GPRS technology and with the help of this GPRS services, we were able to use the browsing, that is the web browsing करने लगे, ईमेल एक्सेस करने लगे, फास्ट डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग ऑफ डेटा। फास्ट कहाँ थी, वो बस थी नाम की थी, लेकिन बस एज कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन इट वाज फास्ट अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग ऑफ डेटा
were possible with the help of this 2.5G. Okay. हम लोग उस टाइम पे डाउनलोड मतलब के रिंगटोन्स मेरे पास में आई थिंक था 6600 व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग इन 2004. So I was having 6600. So I used to download lot of .nth file, dot nth file that was for themes purpose, and .rar file also. ठीक है. और उसके अलावा भी इसका क्या था मैं भूल गया उसका एक्सटेंशन. तो आई यूज टू डाउनलोड नंबर ऑफ थीम्स, आई यूज टू डाउनलोड नंबर ऑफ एप्लीकेशन के जो सेटअप फाइल होती थी. We are about to end, not a big deal. We'll complete in 2 minutes. Okay, am I audible? Yes, Am sir. I audible? Okay, okay. Thank you. So, so it was 2.5G, which in which the second generation era, one more technology were added, and it were known as the 2.5G. Okay. Coming to the third generation, I think you also have seen this particular era. आप जब छोटे होंगे तब आपने शायद ये देखा होगा. In third generation, the speed were improved and it was around 2 Mbps, and the standard were WCDMA, wireless CDMA and CDMA 2000. These are the standard which were used in the third generation. Okay, I'm just talking about the technology. जैसे कि आपके सेकेंड जनरेशन के अंदर GSM यूज हुआ, फर्स्ट जनरेशन के अंदर AMPS एंड TACS यूज हुआ. इन द सेम वे इन द थर्ड जनरेशन we were in the third generation we were having WCDMA and CDMA 2000. So it was the technology which were used in the third generation. Advanced multimedia services and global roaming were also possible with the help of this third generation. The web based application, video conferencing, आपका 3D गेमिंग. तो ये सारी चीजें उसके बाद में थर्ड जनरेशन से पॉसिबल हुई. ओके. उसके बाद में 4G. नाउ यू ऑल द पीपल्स आर अवेयर अबाउट द 4G. हालांकि ऐसा होता है हमारे इंडिया में कोई भी टेक्नोलॉजी कोई भी जनरेशन आने के बहुत दिन के बाद में हम तक पहुंचती है. Even we are not getting the actual speed of 4G, which is actually claimed by the generation. हम लोग जब यूज करते हैं तो हम लोग को मिलती है इतनी स्पीड. They are claiming that the speed is around 200 Mbps to 1 Gbps. So we are not getting that much amount of speed in our 4G because we all are 4G enabled. Sorry, we are all the devices are 4G enabled and we all are using the network services which are 4G. ठीक है. तो 4G में हम लोग को उतनी स्पीड नहीं मिल पाती, फिर भी नहीं मिल पाती. So that's the reason. नाउ यू कैन सी कि आपका जो 5G है वो भी काफी जगह पर इम्प्लीमेंट हो चुका है, बट दे आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल स्पीड. और यहाँ पर भी आने तक कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो. ओके. स्टैंडर्ड यूनिफाइड IP और कॉम्बिनेशन ऑफ LAN, WAN, PAN एंड WLAN, these ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी आपका 4G का स्टैंडर्ड है. डायनामिक इंफॉर्मेशन एक्सेस, वेरिएबल डिवाइसेस, लाइव स्ट्रीमिंग पता है आप लोग को. वेरिएबल डिवाइसेस हाथ में और कहाँ कहाँ पहनते हैं तो वो सब वेरिएबल डिवाइसेस आर आल्सो पॉसिबल.
और उसके थ्रू आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। सो ये था आपका 4G के बारे में। एंड 5G तो लास्ट 2 साल से मैं ले रहा हूँ, तो इसको मैंने ऐसे ही कमिंग सून पे रखा हूँ, बिकॉज स्टिल वी डोंट हैव 5G एनेबल्ड एरियाज, बहुत ही कम एरिया है। समवन वांट टू स्पीक अबाउट 5G? कोई है एरिया जहाँ पर, बिकॉज आई हैव नॉट रीड एनी आर्टिकल और एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस 5G। तो आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा 5G के बारे में? Okay, so that is implemented in this particular area, and those people are using, because a lot of companies are giving 5G enabled phones also. Oppo, Samsung, and Vivo, iPhone, and ये सारी की सारी brands में बहुत सारे phone, बहुत सारे models are there which are 5G enabled, and which can actually run on 5G network पे run करके implement कर सकते हैं. So any टिप्पणी, any comments about 5G? We'll stop over here. हाँ, बोलो. Anyone wants to speak? कमाल है, मैं नाम लेके बोलूंगा फिर. Okay, I'll discard the changes. Stop the recording first. Omkar,